السلام علیکم، میں ہوں عریشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیاری عریشہ کا کچن۔ آج ہم بنانے والے ہیں سپر سافٹ کپ کیک، وہ بھی بہت ہی ایزی ریسیپی کے ساتھ۔ آپ اس کو 15 ڈیز کے لیے فریج میں بھی سٹور کر سکتے ہیں، بالکل سافٹ رہے گا، ہارڈ نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جال بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سپر ہٹ ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں، وہ بھی وداؤٹ اوون۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بہت پسند آنے والی ہے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے 2 انڈے لیں گے اور 1 کپ شوگر پاؤڈر لیں گے۔ انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے، اور جو ہم نے شوگر پاؤڈر لیا ہے 1 کپ، اس میں سے 2 ٹیبل اسپون ہم نکال دیں گے، ریموو کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے بہت ہی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے۔ اس میں کوئی الیکٹرک بیٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹرک بتاؤں گی کہ بیکنگ کرتے ہیں نا تو ہمیں ساری چیزیں یہاں پر روم ٹیمپریچر پہ چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ انڈے آپ نے فریج میں سے نکالنا ہو فوراً سے آپ بیکنگ اسٹارٹ کر دیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایسا کرنے سے نا پھر ریسیپی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں پہ میں 1 ٹی اسپون چاکلیٹ ایسنس ایڈ کرنا ہے، بٹ میرے پاس چاکلیٹ ایسنس نہیں ہے، ختم ہو گیا تھا، تو میں ونیلا ایسنس ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس چاکلیٹ ایسنس ہے تو آپ وہ ایڈ کریں، نہیں ہے تو ونیلا ایسنس بھی چلے گا۔ یہاں پہ میں 5 ٹیبل اسپون ملک ایڈ کر رہی ہوں، یعنی کہ دودھ، اور روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے یہ۔ اگر آپ سردیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس کو گرم کر لیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگین مکس کریں گے آدھا منٹ کے لیے۔ جب بھی آپ نے کوئی چیز بھی ایڈ کرنی ہے نا تو آدھا منٹ کے لیے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ اور یہاں پر اب میں ایڈ کروں گی ½ کپ آئل۔ آئل میں سے میں 2 ٹیبل اسپون نکال دوں گی۔ اگین اس کو میں آدھے منٹ کے لیے مکس کروں گی۔ اب اس میں 3 ٹیبل اسپون کوکو پاؤڈر جائے گا اور 1/4 ٹی اسپون سالٹ جائے گا۔ اور کوکو پاؤڈر کو میں نے اس ٹائم پہ اس لیے بھی ڈالا ہے کیونکہ جو کوکو پاؤڈر کا ٹیسٹ ہے نا اور کلر ہے وہ ملک اور آئل میں مکس ہو جائے بہت اچھے سے۔ ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا میں ایک چیز اور بتا دوں، یہاں پہ میں نے تھوڑی اسپیڈ تیز کی ہوئی تھی، آدھا منٹ کے لیے آپ نے مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد 1 کپ میدا لیا ہے، میدا اچھی کمپنی کا ہونا چاہیے، اور ½ ٹی اسپون یہاں پہ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور 1 پنچ یہاں پہ بیکنگ سوڈا ایڈ کر رہی ہوں۔ اور سوڈا اگر اچھی کمپنی کا نہیں ہوگا نا تو صابن کی اس میں اسمیل آ سکتی ہے، تو آپ نے ہمیشہ سوڈا اچھی کمپنی کا استعمال کرنا ہے۔ کوئی بھی برانڈ کوئی بھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کھلا ہوا تو بالکل بھی آپ نے یوز نہیں کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو بہت ہی اچھے سے ہم نے پہلے اسٹین کرنا ہے، یعنی کہ چھاننا ہے، پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے۔ اگین اس کو مکس کریں گے، مکس کرنے کے بعد 1.5 ٹیبل اسپون یعنی 1 ٹیبل اسپون اور ½ ٹیبل اسپون یہاں پہ ہم پانی ایڈ کریں گے۔ پانی ہم نے نارمل لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سردیوں میں آپ بنا رہے ہیں تو پانی بھی تھوڑا سا آپ نیم گرم کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس میں ایڈ کر لیے گا۔ اس سے زیادہ اس میں پانی نہیں جائے گا، بس اتنا ہی ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے، اس کو اگین مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد ہمارا بیٹر تیار ہے، اور آپ کوئی بھی کپ لے لیں یا کوئی بھی جگ وغیرہ لے لیں، آپ اس میں اس بیٹر کو ڈالیں اور اس کو پھر مولڈ میں ہم نے شفٹ کرنا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ مولڈ لے لیا ہے، اس کو آئل سے گریز کر لیا ہے، اس میں سارا 1 بائی 1 کے بیٹر ایڈ کر دوں گی۔ بہت زبردست بن کے تیار ہوتا ہے، اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک اس کا ضرور شیئر کیجیے گا۔ ریسیپی انشاءاللہ تعالیٰ سب کو پسند آنے والی ہے اور ایزیلی آپ لوگ سیل بھی کر سکتے ہیں، اتنی سستی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ بیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس میں اوون کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے ہر چیز کو پراپر طریقے سے سیکھنا ہوتا ہے، ہر چیز کو بیلنس لے کے چلیں گے تو یہ ریسیپی پرفیکٹ آئے گی اور ایزیلی آپ لوگ بہت اچھا کما سکتے ہیں۔ 20 سے 25 منٹ میں آرام سے یہ بیک ہو جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، جب آپ سارا پروسیس سٹارٹ کریں اس سے پہلے آپ نے پتیلی کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد اس میں رکھ دیں اور 25 منٹ کے لیے بھول جائیں، اس کے بعد الحمدللہ بہت زبردست بن کے تیار ہوگا۔ اس کی خوشبو اتنی اچھی آتی ہے، جب آپ نکالیں گے نا گرم گرم دل کرے گا بس اٹھاؤ اور کھا لو۔ گھر والوں نے تو ٹھنڈا ہونے کا ویٹ بھی نہیں کیا، بس ویڈیو شوٹ ہوئی تھی اور وہاں پہ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ بس جیسی ہی ویڈیو ختم ہو اور ہمارا حملہ ہو جائے۔ بہت زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، اتنے سپر سافٹ اور موئسٹ بن کے تیار ہوئے ہیں۔
सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में मौजूद होंगे। ना ओवन की ज़रूरत है, ना बटर की ज़रूरत है, ना ही बीटर की ज़रूरत है और ना ही अंडे की ज़रूरत है। कैसे तैयार किए जाते हैं? बहुत ही सिंपल रेसिपी बताने वाली है, हर कोई बना सकता है। बच्चों की फरमाइश पे भी झटपट आप बना के तैयार करके बच्चों को खिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले ली है शुगर पाउडर। ठीक है, अगर आपके पास शुगर पाउडर ना हो, चीनी को ग्राइंडर में पीसें। ग्राइंडर में पीसने के बाद शुगर पाउडर इजीली तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। ठीक है, ऑयल आप अच्छी कंपनी का होना चाहिए। जितना अच्छा ऑयल होगा उतनी ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 4 टेबल स्पून मैदा ऐड करूंगी। मैदा को बहुत अच्छे से छान लिएगा। पहले मैंने यहाँ पे छान लिया था, उसके बाद मैं इसमें ऐड करते जा रही हूँ। दोनों कप पे मैं 4 टेबल स्पून मैदा ऐड करके जाऊंगी। और यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। 1 पिंच यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं दूध ऐड करती जाऊंगी। 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। ग्रेजुअली ऐड करना है और इसको साथ साथ मिक्स करते जाना है। सारी चीजें मिक्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैटर तैयार है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने प्री हीट होने के लिए पतीले को रख दिया था 15 से 20 मिनट पहले, मीडियम टू लो फ्लेम पे। जब पतीला प्री हीट हो जाए तो उसके बाद आपने रखना है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। यहाँ पर मैंने ले ली है एक चॉकलेट, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। इसमें हाफ टी स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने से ये होगा इसमें शाइन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने चॉकलेट भी मेल्ट कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ अब आपने क्या करना है। यहाँ पे मैंने एक नाइफ ले ली है और सेंटर से मैंने इसको कट किया है। ठीक है, अगर आप नाइफ से नहीं तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ये 1 टेबल स्पून वाला मेजरिंग स्पून था, मैंने उससे भी आपको करके दिखा दिया। और मैंने इसमें चॉकलेट ऐड कर दी है और जो हमने ऊपर से इसका हटाया था वो अगेन मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा मैंने प्रेस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मजेदार था। हमारा चोको लावा तैयार है। एक बार आप जरूर ट्राई करें। बच्चे बड़े हर कोई बना सकता है इजीली। इतनी आसान रेसिपी है। मीठे का दिल करे ना तो ये जरूर ट्राई कर लिएगा। बिना ओवन के बनाएंगे हम, जग में बनाएंगे और बिना बीटर के बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आप लोग फुल देखेंगे तो परफेक्ट बन के तैयार होगी। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करेगा, वीडियो एंड तक देखेगा। हर चीज स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। अगर आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया है। सारी चीजें यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। यहाँ पे मैंने हाफ कप मिल्क ले लिया यानी कि दूध, और हाफ कप मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड करे हैं। और यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड किया है 1 टीस्पून। और इसको हम बहुत ही अच्छे से ब्लेंडर में 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पे तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है मैदा। ठीक है, इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ हम ऐड करते जाएंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। टीस्पून लेना है, टेबल स्पून नहीं लेना। और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। ठीक है, अगेन इसमें सारी चीजें मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार करा था वो ऐड कर लेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो एक जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। बैटर को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छे से ये बैटर तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसको मैंने डिवाइड कर लिया है दूसरे बाउल में। और मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है। ठीक है, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसको अगेन मिक्स करेंगे। पर उससे पहले हम 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे यानी कि दूध। और मिल्क इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमने कोको पाउडर ऐड किया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बैटर गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा ना हो, बैलेंस रहे, तो इस वजह से 1 टेबल स्पून इसमें हमने मिल्क ऐड कर लिया। इसको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैंने ले ली है एक मोल्ड। ठीक है, इसमें मैंने एक बोतल होती है ना,
बोतल का पीछे का हिस्सा काट के मैंने इसको वो रखा है शेप देने के लिए। हम प्यारा सा एक शेप देंगे। तो मैंने 1 बाय 1 करके पहले जैसे चॉकलेट डाला और चॉकलेट वाला डाला बैटर, उसके बाद मैंने वनीला वाला डाला। इसी तरह से हमने सारा ऐड कर लिया और बहुत ही जबरदस्त इसकी शेप बनके तैयार होती है और बहुत ही इजी मैंने आपको ये टिप बताई है, जरूर आप इसको फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर दी थी और मैंने 2 फॉग उठाए, उससे मैंने इसको हटा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा केक तैयार है। मैंने पतीले में बनाए हैं और प्री हीट के लिए पतीले को रख दिया था 20 मिनट पहले। ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने रखा था और इसको मैंने फिर 40 मिनट के लिए बेक किया है पतीले में और मीडियम टू लो फ्लेम ही रखी थी। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। आज की बेकिंग क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी ब्राउनी रेसिपी जो एक अंडे से बनके तैयार करनी है। बहुत जबरदस्त बनके तैयार होती है, इजी रेसिपी है। बिगनर्स अगर आप हैं तो बिगनर भी बना सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं आएगा। बस रेसिपी को पूरा देखिएगा, मेरी 100% गारंटी है अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगी। ब्राउनी तो आपने देखी ना कि कितनी जबरदस्त बनी है, सॉफ्ट बनके तैयार हुई है, इतना जबरदस्त इसका टेस्ट आया है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त बनके तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बाउल में एक अंडा लिया है, लार्ज अंडा लिया है और इसके बाद हाफ कप शुगर पाउडर ऐड किया है। अगर आप ग्राम्स में देखें तो 108 ग्राम इसमें ऐड होगी। विदाउट बीटर हम बना रहे हैं तो इसको हमने बहुत अच्छे से बीट करना है विस्क की मदद से तकरीबन 1 मिनट के लिए। इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद इसके बाद हमें चाहिए डार्क चॉकलेट 1/4 कप। ठीक है, इसको मैंने पहले कट करा, उसके बाद मैंने इसको डबल बॉयलर में इसको मैंने मेल्ट किया और यहाँ अगर चॉकलेट्स ग्राम्स में देखा जाए तो 55 ग्राम मैंने ली है और इसमें 1/4 कप मैंने ऑयल ऐड किया है यानी 54 ग्राम्स और इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया था अगेन विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीजें मिक्स हो जाए और तकरीबन हमें 5 मिनट के लिए हमें इसको मिक्स करना है। सारी चीजें हमें कंबाइन करनी है, ऑयल जो हमने डाला है वो अलग ना रहे, ये इस चीज का आपने ख्याल करना है। ठीक है, जितनी देर में ये ऑयल इसमें कंबाइन होगा उतनी देर हमने इसको मिक्स करना है। और अब मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड किया है 1 टीस्पून तकरीबन और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और वनीला एसेंस किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा इजीली, परेशान होने की बात नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे 1/4 कप हमें चाहिए मैदा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1/4 कप मैदा लिया है, इसको स्टेन करेंगे। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं क्योंकि ये इजीली मिक्स हो सके। अगर एक साथ डाल देंगे ना तो ये मिक्स नहीं हो पाएगा इजीली, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो थोड़ा करके डालेंगे ना मैदा तो फिर वो इजीली मिक्स हो जाएगा। और मैदे को अगर हम ग्राम्स में देखें तो ये 42 ग्राम मैंने इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड किया है जो ग्राम्स में बनता है 24 ग्राम। और इसको हमने बहुत ही अच्छे से पहले छानना है, उसके बाद इसमें ऐड करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। और इस स्टेप पे आके आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये मिक्स नहीं हो रहा तो हम पानी डाल दें या दूध डाल दें तो मिक्स कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने। ये इसी तरह से ही मिक्स होगा। मैंने यहाँ पर स्पीड तेज नहीं की इसी वजह से ही कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे इजीली मिक्स हो जाएगा। इसमें ना मैंने पानी डाला है ना ही मैंने दूध डाला है। और बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैंने 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून लिया है, टेबल स्पून नहीं लिया है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगेन इसको सिर्फ हमने मिक्स करना है। ये जब मिक्स हो जाए तो ये हमारा बैटर तैयार है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया है। ठीक है, मैंने ऑयल से इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे बटर पेपर ऐड किया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा भी इसमें थोड़ा सा इसमें डस्ट कर सकते हैं और वरना आप इसको सिर्फ ऑयल से भी ग्रीस करके डालेंगे तो तब भी ये रेडी हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने सारा बैटर इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, जब इसमें सारा बैटर ऐड कर लें तो इसको हमें स्पैचुला की मदद से सेट करना पड़ेगा। इसको बहुत ही अच्छे से सेट करने के बाद इसको हमने 2-3 दफा टैप करना है ताकि ये सेट हो जाए आराम से। इसमें कोई भी फिर सेंटर में जो बबल्स बन जाती है ना वो ना बने, तो ये टैप जरूर कीजिएगा 1 से 2 दफा।
اور اب جو میں پوائنٹ بتا رہی ہوں اس کو غور سے سنیے گا. یہاں پہ میں نے ساری چیزیں تیار کرنے سے پہلے پری ہیٹ ہونے کے لیے پتیلے کو رکھ دیا تھا. جتنی دیر میں یہ ساری چیزیں بنی ہے اتنی دیر یہ پری ہیٹ ہوا ہے پتیلا. اس کے بعد میں نے یہاں پہ 30 منٹ کے لیے اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. الحمدللہ 30 منٹ بعد بہت ہی زبردست یہ ہماری فجی براؤنی تیار ہوئی ہے. اتنی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے. ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر نیو ہے آپ سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیو ریسیپی کے ساتھ ملوں گی. اللہ حافظ.